Okay, so today we will start with new topic, uh, relations and functions. This is extension of set. ये set का extension है ये topic. इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज? Today we will try to cover Cartesian product. We will also try to cover what is a relation, and we will give little introduction to function. I will also try to cover in relation some concept like domain, range, codomain. That all I will try to cover. This is my plan for today. Okay. So देखो, first we start with Cartesian product. So suppose I have set A and set B, and I need to find the Cartesian product of these two sets. See now, the Cartesian product can be written in three ways: in a roster form, in a set builder form, or in a visual representation. देखो, visual representation can be of various types. I have taken one. There are many other ways of representing your Cartesian product. Okay. Now, if I take a set A, which is 1, 2, 3, and set B, B, C, D. If I want to make Cartesian product A cross B, so how I write Cartesian product A cross B? I will relate element by element. A को B से करूँगा. I write like this. 1 is related to B. Then I will relate 1 to C. Then 1 to D. मतलब क्या 1 by 1 जैसा प्रोडक्ट करते हो ना ब्रैकेट्स का वैसे. Next will be what? 2 to B. 2 to C. 2 to D. Next will be 3 to B. 3 to C. And 3 to D. This is my complete Cartesian product. Right? This is the way of writing in a roster form. अब याद रखो A क्रॉस B है तो देखो A के एलिमेंट्स पहले आ रहे हैं, B के एलिमेंट्स बाद में आ रहे हैं. See, A elements are coming first and B elements are coming afterwards. This is my A cross B. अब देखो this A cross B I can write even in a set builder form. अब देखो how I write in a set builder form. A cross B is equal to, now see here I have two elements, right? I will write something like X cross Y such that X belongs to set A and Y belongs to set B. It automatically means that this complete. There is also one way to writing cross product or Cartesian product into A cross B. Now how I write it in A cross in this form, visual representation. A I will take here 1, 2, 3. B I will take here B, C, D. Now A is related to all three products. But similarly B is related to all three. Sorry, 2 is related to all three. Similarly, C is also related, 3 is also related to all three. This is how I represent it visually. Okay, how many understood this? Yes, बोलो, बोलो. Set builder. Set builder क्या है देखो, x, y, x, y क्योंकि दो एलिमेंट से अब दो नंबर्स मूव हो रहे, राइट? दो नंबर्स मूव हो रहे तो मैं x, y दोनों लूंगा. अब देखो x के व्हाट इज x? x इज एलिमेंट ऑफ A, y इज एलिमेंट ऑफ B.
व्हाट डज दिस मीन्स? एक्स के और वाई के सारे कॉम्बिनेशन, एक्स और वाई के सारे कॉम्बिनेशन, व्हाट डज इट मीन? 1b, जैसे मैं ये लगाया था 1b 1c 1d, सिमिलरली 2b 2c 2d, सिमिलरली 3b 3c 3d। आया समझ में? अब देखो दिस कंप्लीट इज अ एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट सर ऑफ ए। बोलो। सर सेट बिल्डर वापस बताएं। ओके देखो x और y मेरे दोनों चेंज हो रहे हैं कि नहीं? देखो समझ में आ रहा है? ये पहला पार्ट x है मेरा, 1 2 3, b c d क्या है मेरे y है। अब x किससे रिलेटेड है? x किससे रिलेटेड है? x मेरा ये a से रिलेटेड है, और ये y किससे रिलेटेड है? b c d b c d b c d, ये कैपिटल B से रिलेटेड है। तो दिस इज हाउ आई राइट। पहले आप कैसे लिखते थे? a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू सम इंटीजर समथिंग, आप लिखते थे कि नहीं? अब क्यों a ही लिखते थे, x ही लिखते थे? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आपके पास 1 2 3 ऐसे जाता था। कब का करा रहे हो? कौन है? म्यूट हो जाओ। सैटरडे को करो। स्टूडेंट्स म्यूट योरसेल्फ। ओके आया समझ में सोहेल? अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज हो रहा था, 1 2 3 -1 -2, तो मैं सिर्फ x लगा था। यहाँ पे दो चेंज हो रहे हैं, ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, इसलिए मैं दो ले रहा हूँ। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। आप हर चीज सेट रिलेशन फंक्शन ऐसी तरीके से लिखोगे, आपको और करोगे तो समझ में आएगा। ओके आ गया समझ में? यस। सो व्हाट आई वाज टेलिंग, 2 d is element of a cross b, 2 d is element of a cross b, this is also known as ordered pair। पेयर क्यों? दो पार्ट में, ये नाम है ऑर्डर्ड पेयर। आई विल राइट व्हाट, 1 b is element of a cross b, similarly I will write 3 c is a element of a cross b। ये सारे क्या है मेरे? एलिमेंट है, किसके? a क्रॉस b के। इसको एलिमेंट ही बोल सकते हैं, a क्रॉस b, दे आर आल्सो नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। ये एक न्यू नेम है, न्यू टर्म है, याद रख लो, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है? Okay, now we go ahead. I give you a question. Same cheese. A is 1 2 3, B is B C D. I want you to find Cartesian product of B cross A. Can you find Cartesian product of B cross A? Quickly you do. Once you do, please type done. Once you do, please type done. B cross A. First you have to take B. Then you have to take A. Remember it. I give you one example. B1, क्योंकि B क्रॉस है, B2, B3. Similarly, you do for C and D. Done, very good. Right? C1, C2, C3. अब देखो कुछ चीजें हम क्या गलती करते हैं, ब्रैकेट, हम बाहर ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, ये आपको याद रखना है, लगाना है ये। D1, D2, D3. This is what my, this is B cross A. Can you write this in set builder form? B cross A is equal to x comma y, right? Such that x belongs to, x किसका पार्ट होगा? पहले क्या आ रहा है? पहले आ रहा है b, राइट? देखो हर जगह पहले सेट b आ रहा है, राइट? हर जगह पहले क्या आ रहा है? सेट b आ रहा है, b के एलिमेंट्स आ रहे हैं। x belongs to set b and y belongs to set a। अब देखो कार्टेशियन कैसे हो जाएगा? विजुअल रिप्रेजेंटेशन, बी सी डी 1 2 3,
You relate P1, P2, P3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, like this. Okay, कितनों को बना? किसी को कोई डाउट? Any student is having any doubt? सोहेल, आलोक, आया, हर्षल, ठीक है, वेरी गुड. Okay, can you please tell me this question? Yes, I'll go slow. Can you please answer this question? If A cross B is this, then the value of A is, and value of B is. देखो A क्रॉस B, पहले क्या आएगा? A एलिमेंट, A के एलिमेंट्स आते हैं. A क्रॉस B है तो ये A के एलिमेंट्स हो गए. और देखो A के कितने एलिमेंट हैं? 5 है एंड 8 है. दिस इज A. B क्या हो जाएगा? B सेकेंड पार्ट हो जाएगा, बिकॉज B बाद में आ रहा है. B क्या है मेरा? 5, 6, 7. This is what my A cross B is. I hope you understood, right? So मेरा 5, 8, ये ऑप्शन C हो गया और ये B हो गया. अब आप इनको प्रोडक्ट करोगे तो वापस आप इस पे आ जाओगे. Okay, let's go ahead. किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे रोक लेना. Okay, can you please do this question? A माइनस सी क्या होगा? A माइनस सी, कॉमन एलिमेंट हटेगा, A माइनस सी बिकम्स 1, 4, राइट? B माइनस सी बिकम्स 2 और 5 हट जाएगा, 4. So A माइनस सी क्रॉस B माइनस सी. अब देखो A माइनस सी के एलिमेंट्स पहले लो, A माइनस सी के एलिमेंट्स पहले लो, B माइनस सी के एलिमेंट्स बाद में लो. क्यों? ये पहले आ रहा है. You can also write 1, 4 क्रॉस 4. कैसा आएगा आंसर? 1, 4, ये इससे फिर 4, 4. This is my answer. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर वापस समझाइए ना एक बार. Yes. ये आप करो A माइनस सी करो. I'll explain. A माइनस सी करो. A क्या है मेरा? ये. C मेरा ये है. A माइनस सी करोगे तो A से C के एलिमेंट्स हटा दो. 2 कॉमन है तो 2 हट गया A से. क्या आ जाएगा? 1, 4. वैसे B माइनस सी करो. B और C में क्या क्या कॉमन है? 2, 5, 2, 5. B माइनस सी है तो B से 2 और 5 हटा दो, क्या बचा? 4. अब A माइनस सी क्रॉस B माइनस सी. अब A माइनस सी और B माइनस सी का क्रॉस कर दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो 1, 4 क्रॉस 4 क्या आ जाएगा? 1, 4, 4, 4. अब देखो कोई स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर A माइनस सी और C माइनस ए एक ही चीज है क्या? नहीं, A माइनस सी एंड C माइनस ए एक नहीं है. C माइनस ए क्या होगा? C माइनस ए होगा. अब देखो कॉमन पहले देखो, 2 कॉमन है तो A माइनस सी क्या आएगा आपका? 1 and 4.
बट C माइनस ए क्या आएगा आपका 5। C माइनस ए में मैं C से 2 हटा रहा हूं, A माइनस C में मैं A से 2 हटा रहा हूं। आया समझ में आलोक? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1 मिनट सर। आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके सर। Okay, next. If A is this, B is this, then A cross B union B cross A is equal to. मतलब क्या है ये? 1 cross 2 into 1 cross 3, and this is 1 cross 3 into 1 cross 2. फर्क है, क्या होगा? 1 1 1 3 2 1 2 3. This will be 1 1 1 2 3 1 3 2. अब इनका यूनियन कर दो। 1 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 3 3 2. कौन सा ऑप्शन आ रहा है? देखो 1 1 1 3 2 1 2 3 1 2. बस मैं चेक कर रहा हूँ। 3 1 3 2, ये ऑप्शन है। यूनियन मतलब क्या? इन दोनों का कॉम्बिनेशन। A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस A, मतलब क्या? दोनों के कॉमन एलिमेंट्स ले लो, आपका A ऑप्शन आ जाएगा। कितनों को आया? हाउ मेनी गॉट इट? बना A क्रॉस B B क्रॉस A, इनका यूनियन। So let's go to next question. Can you please solve these two? ये NCERT का है, एग्जाम्पल 3। इसके 4 पार्ट है, मैंने 2 ही लिए। लगता है एग्जाम की वजह से 2-3 बच्चे नहीं है, 2-3 बैट्समैन आए नहीं। ओके, आप सब एक बार अपनी अटेंडेंस टाइप कर सकते हो क्या? जस्ट टाइप योर नेम्स, बाद में मुश्किल हो जाता है, आखिर में विकेट गिर जाते हैं। कैन यू ऑल प्लीज टाइप योर नेम्स? तो ठीक है, आया आंसर? बी इंटरसेक्शन सी, ए मेरा हो जाएगा 1, 2, 3। बी इंटरसेक्शन सी इज 3 4 4 5 6। क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन में A क्रॉस B इंटरसेक्शन C विल बी 1 4। कितना का यही आ रहा है? 2 4 3 4। अब देखो, आप गलती मत करना, इसको पहले मत ले लेना। यू डोंट डू लाइक दिस। देखो, B इंटरसेक्शन C क्रॉस A अलग चीज है, 4 1 4 2 4 3 अलग चीज है।
अलग अलग आंसर्स हैं, ठीक है ना? तो ठीक है, ये वाला करो, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये ऐसे करने से आएगा। ओके, नेक्स्ट। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी, अब मैं पहले ए क्रॉस बी लेता हूं। 1 3 1 4, आप भी करो। 2 3 2 4 3 3 3 4, वेरी गुड। एंड बी ए क्रॉस सी, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। कॉमन एलिमेंट, अब देखो कॉमन एलिमेंट क्या क्या आ रहा है मेरा, इंटरसेक्शन है, कॉमन एलिमेंट आएगा। देखो एक तो मेरा आ रहा है 1 4 2 4 3 3 3 4, क्या आ गया? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 1 4 2 4 3 4। चलें आगे, आया? मैंने सही किया है ना? आप मुझे बताते रहना मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Let A and B be two sets such that number of elements of A is 3, number of elements of B are 2, yes, if x comma 1 y comma 2 z comma 1 are in A cross B, मतलब क्या? x comma 1 y comma 2 z comma 1 they belongs to A cross B. Find A, find B. अब देखो बहुत इजी,
स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आपको? चलो सॉरी, आपको तो पता है प्रॉब्लम। चलो ठीक है। मुझे कौन है होस्ट? अभय, कैन यू प्लीज मेक मी होस्ट? थैंक यू वेरी मच। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। क्या मुझे आंसर बता सकते हो? यस, लाइट। एक्चुअली लाइट आती है लेकिन राउटर रिस्टार्ट हो जाता है। एक विकेट गिर गया, लाइट गई तो नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग डोंट गेट करप्ट। ओके, ए क्रॉस क्या था क्वेश्चन? यस, x1 y2 z3 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। देखो ए के 3 एलिमेंट है, तो देखो पहले जो ये नंबर से ये क्या एलिमेंट है, किसके? ए के। जो ए क्रॉस बी है, ए हो जाएगा x y z, और बी के 2 एलिमेंट्स हैं, क्या क्या हो जाएंगे? 1 है 2। राइट, वेरी गुड। Okay, now next is properties of Cartesian product of set. Let's discuss some properties. Okay, for product of two sets, the pairs are called ordered pair. आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, राइट? अगर A है मेरा 1,2 और B है मेरा 3, तो A क्रॉस B जब हम लिखते हैं तो क्या होगा? 1,3, 2,3। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर्ड पेयर। But it's not only the case of for the case of 2. I can even have a for case of 3 products. अगर 3 sets product हो रहे हैं, अब देखो 3 का प्रोडक्ट कैसे करेंगे? सर जैसे हम इसमें प्रोबेबिलिटी में करते थे। यस, अब देखो सपोज मेरा ये A है, यस यस यस, आई विल गो स्लो। A है मेरा 1 2, B है मेरा 3 4 एंड C है मेरा 1। एक्चुअली सेट्स और रिलेशन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रोबेबिलिटी का फाउंडेशन है। ये ही प्रोबेबिलिटी का पार्ट है एक तरह से, मतलब। अब देखो ए बी सी, ए मेरा 1,2 है, बी 3,4 है, सी 1 है। अब मुझे 3 सेट्स का प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब ये कैसे करेंगे हम? अब देखो सारे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, सारे कॉम्बिनेशंस। देखो कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा तरीका क्या है बनाने का? 1 को 3 से करो, 1 को 4 से करो। कैसे हो जाएगा? 1,3, फिर ये इसको 1 से करो, 1,3,1, 1,4,1। ऑर्डर में चलो। फिर 2 को 3 से करो, 2,3,1, फिर 2 को 4 से करो, 2,4,1। दिस इज माय कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फॉर 3 सेट्स। अब देखो इसको ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये 3 है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्यों? 3 का पेयर है, इज नोन एज ऑर्डर ट्रिपलेट। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ओके, कैन यू फाइंड ट्रिपलेट फॉर, आई गिव यू अ, यस साक्षी, क्या डाउट है? यस, देखो सारे कॉम्बिनेशन ए बी सी के सारे कॉम्बिनेशन, तो देखो पहले 1 को लो, इसको फिक्स करो, 1,3,1, फिर 1,4,1, फिर 1 को हटा के 2 को लो,
2,3,1, 2,4,1, 4 कॉम्बिनेशंस आ गए। अभी मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, आपको करना है ये, ठीक है। सपोज ए है मेरा 1,2, कैन यू फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए? A cross A cross A. सर गो स्लो सर। Yes. A cross A cross A. 1,2 into 1,2 into 1,2. प्रोडक्ट करना है। अब देखो ये कैसे करेंगे। 1,1,1 1,2,2 सॉरी 1,1,2। पहले आखिरी के सेट को मूव करो, समझ रहे हो आप? 1,1,1 1,1,2। अब एक बार ये आखिरी के दोनों टच हो गए। अब मैं क्या करूंगा, अब 1 के साथ 2 लाऊंगा। 1,2,1 1,2,2 क्या आ जाएगा? 1,2,1 1,2,2। अब देखो 1 के सारे खत्म हो गए। 1 ने इसके साथ पेयर बना लिया, इन तीनों के साथ। 1 ने 2 1 2 के साथ ही पेयर बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं 2 को लेके करता हूँ। सर सेकेंड पेयर नहीं समझे सर। यस, देखो 2 के भी तो 1 के 2, देखो 1 ने अभी क्या किया, 1 ने 1 को लिया, लेकिन 1 के साथ आप 2 भी तो लोगे। सारे कॉम्बिनेशंस लेने ना आपको। नहीं आए समझ में? सर सेकेंड कॉम्बिनेशन से 1 वापस के समझा। साथ 2 भी तो लोगे आपने। 1 2 1 हाँ सर। 1 2 2 आया समझ में? अब देखो 1, अब 2 लो। 2,1,1 2,1,2 क्या आ जाएगा? 2,1,1 2,1,2। एक पैटर्न में चल रहा है, ध्यान से देखो। अब 2 2 के साथ लूंगा। 2,2,2 2,2। आपको मैं एक और तरीका बताऊंगा, उससे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 2,1,1 2,1,2 सॉरी 2,1,1। सर ये प्रोबेबिलिटी के द्वारा है ना। हाँ, अब देखो इसको 3 आप एक और तरीके से कर सकते हो। देखो अब देखो, अच्छा 4, अब देखो 1 के पेयर बनाओ। 1 2 1 2 1 2 1 2 तो आ जाएगा 1,1 1,2,1 ये आ जाएगा 1,2, ये हो जाएगा 2,2। अब इसके पेयर बनाओ वापस 1। अब ये ऐसे बनाओ। आपको जो मेथड लेना है ले लो। 1,1 1,2 2,1 2,2 और ये ले लो 1 2। क्या आ जाएगा? 1,1,1 1,2,1 2,1,1 2,2,1 1,1,2 1,2,2 2,1,2 2,2,2 कुछ नहीं बना रहा हूँ, पेयर्स बना रहा हूँ। ये कहीं तो आपने पढ़ा भी होगा बचपन में,
पता नहीं कहाँ पड़ा है, मुझे याद नहीं। ओके, कितनों को आ गया समझ में? पहले मैंने क्या किया, ए क्रॉस ए लिया, इनका पेयर बनाया, फिर जो पेयर आया उसका फिर मैंने ए के साथ पेयर बनाया, थर्ड पेयर। आपको जो ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे, या तो ये ऐसे कर लो या ऐसे कॉम्बिनेशन लेके कर लो। चलें आगे। यस सर। सोहेल। सर पीडीएफ मिलेगा ना हमें? हाँ, अभी हाँ सर। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। हाँ सर। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। ये क्या है मेरा? ऑर्डर ट्रिपलेट। साक्षी आपको आया? अब देखो, यू राइट लाइक दिस, 2,1,1 is a part of A cross A cross A। ठीक है ना? ओके। थर्ड पॉइंट, if two sets A and B are equal, then A cross B is equal to B cross A। Do you agree with this? Do you agree with this? अगर A और B इक्वल सेट है, then A cross B is equal to B cross A, यस सर। है ना? लेकिन अगर दोनों सेट इक्वल नहीं है तो A cross B is not equal to B cross A, राइट? ओके, वेरी गुड। Cartesian product of a set with a null set is a null set। I give you example। अगर मेरा A है 2,3,4 और B मेरा नल है, तो A क्रॉस B क्या होगा? A क्रॉस B नल होगा। फ्रीज।
Sir cannot hear. Okay, I was telling, please make me host. Okay. I was telling that whenever there is a null set, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या होगा? नल हो जाएगा मेरा. ठीक है. सो नल सेट से अगर प्रोडक्ट किया तो आंसर नल सेट होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट सेट इज अ फाइनाइट सेट. यस, आप एग्री करते हो इसके साथ? फाइनाइट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइनाइट सेट होगा, राइट? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज अ फाइनाइट सेट. दिस इज करेक्ट. If any one set is infinite, then the Cartesian product will be an infinite set. अगर कोई भी एक सेट इनफाइनाइट हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट? लास्ट प्रॉपर्टी, अगर सेट ए में मेरे पी एलिमेंट्स है, एग्जांपल, इसको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं. सपोज मेरा ए है 1 2 3, सेट बी है ए बी. देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 2. अब मैं ए क्रॉस बी लूंगा, अगर क्या होगा? 1A 1B 2A 2B 3A 3B. If you carefully see, number of elements in A cross B are 6. So always remember, number of elements in A are P, number of elements in B are Q. Then A cross B के नंबर एलिमेंट्स कितने होंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा. जैसे देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. 6 इज इक्वल टू 3 इनटू 2, राइट? तो हमेशा याद रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल सेट्स के प्रोडक्ट. बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ. देखो, इंडिविजुअल सेट्स के एलिमेंट्स हैं सपोज मेरे को दिए हुए, तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी एलिमेंट्स निकाल सकता हूँ. कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स क्या होंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा. जैसे देखो, ए में एलिमेंट सपोज पी है, बी में एलिमेंट्स क्यू है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? दोनों का प्रोडक्ट. देखो, मैंने प्रूफ भी कर दिया. सर जैसे 2 डाइस का 36 होता था वैसे. यस. अब देखो, suppose number of elements in A are 12, number of elements in B are 3, the number of elements in A cross B will be equal to what? 12 into 3 equal to 36. Number of elements in B cross A will be also same, which is 3 into 12 equal to 36. ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखना. ओके. ओके, कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन? सर ए. वेरी गुड. ए नल सेट. देखो, दो कार्टेशियन का प्रोडक्ट अगर एक भी नल है तो आंसर क्या होगा? नल, राइट? ठीक है. ओके, कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. इसके बाद हम रिलेशंस पे आएंगे. लाइट ने थोड़ी गड़बड़ कर दी. आई डोंट नो वेदर आई विल एबल टू टच फंक्शंस टुडे. ए क्रॉस बी क्या होगा? 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. साक्षी आपको आ रहा है? हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है? सबसेट्स मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने मेरे? 2. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने? 2. नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा साक्षी आपको? ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है.
तो 2 की पावर 4 इज द सबसेट। मैंने बताया था 2 की पावर इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट। ये साक्षी कहाँ सब डाउट कंफ्यूजन है, प्लीज पूछो। आपको ये समझ में आया? ये कहाँ पे कंफ्यूजन है? ये वाला ना, ये वाला। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा एक सेट ए है, 1 2 3। सेट बी है P Q R S। Now question is find the number of element in A cross B। Find the number of element in A cross B। अब तो कोई डायरेक्ट निकल जाएगा। Number of element in A cross B is equal to number of element in A into number of elements in B, which is equal to what? 3 into 4 equal to 12. Number of element in A cross B cross C is equal to number of elements in A into number of elements in B into number of elements in C। सपोज मैं एक C भी डाल देता हूँ, A B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C क्या हो जाएगा? 3 into 4 into 2 20। आया समझ में? साक्षी अंडरस्टूड? अब मुझे रोक लिया करो, कुछ समझ नहीं आया तो। सोहेल देखो रोक लेता है मुझे, डांट भी देता है वो। आप भी पूछ लिया करो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया राइट? ओके, ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये मैं चेक करवा रहा हूँ, ये चेक करवा रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूँ ये वैलिड है। मैंने देखो Na निकाला 3, Nb निकाला 2, मैंने A क्रॉस B किया। देखो A क्रॉस B के एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो Na क्रॉस B क्या हो जाएगा? Na क्रॉस Nb, 3 2 6। सर में चेक करने के लिए होता है क्या हम राइट किए कि नहीं? ये मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ आपको। हर जगह आपको कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ। If Na is equal to 3, Nb is equal to 2, how many subsets A cross B will have? कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन? ऑप्शन ए 8 16 64 128। अब देखो A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी इक्वल टू व्हाट? Na क्रॉस Nb क्या हो जाएगा? 3 into 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या हो जाएगा? 6। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक बार मुझे पता चल गए सेट्स के, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 की पावर 6 क्या होगा? 64। क्या आ गया? सी आ गया। आया साक्षी समझ में अब कॉन्सेप्ट? सही है, नंबर ऑफ सबसेट का नहीं समझे सर। 2 की पावर n पढ़ाया था मैंने, जितने एलिमेंट सेट में होते हैं, सपोज ये 1 2 3 है, तो कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 3 होंगे कि नहीं? जितने एलिमेंट उतने सबसेट्स 2 की पावर।
सबसेट के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था। अब इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं A क्रॉस B के, तो सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 की पावर 6 64, ठीक है ना। अरे पुराने कॉन्सेप्ट मत भूलो, अभी तो आपको मैं जब मिक्स कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी। देखो नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। अब देखो रिलेशन बिटवीन टू सेट्स इज व्हाट, हाउ वी राइट, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स देख लो। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखो व्हेन आई से रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब क्या, मैं सेट ए को सेट बी से रिलेट कर रहा हूं। And when I say, yes, आपकी क्लास खत्म हो जाएगी ना 5:30। रिलेशन आर फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, मतलब क्या, मैं सेट बी को सेट ए से रिलेट कर रहा हूं। अब देखो आई टेक अ सिंपल एग्जांपल, सपोज आई टेक a is equal to, set a is equal to 1, 2, 3, 4, set b is equal to 2, 4, 6, 7। अब देखो, अब हाउ वी राइट रिलेशन, अब मैं a को b से रिलेट कर रहा हूं, r इज इक्वल टू, रिलेशन r होगा x, y, राइट, सच दैट x किस, देखो आई एम रिलेटिंग a टू b, तो x विल बी अंडर r, अंडर a, एंड y विल बी अंडर b। बट मैं कंडीशन दूंगा, अब मैं इसमें कंडीशन दूंगा, सच दैट, और आई कैन से कॉमा x इज ग्रेटर देन y। ये मैंने एक कंडीशन दे दी। रिलेशन क्या है, एक कंडीशन के साथ देता हूं, तो कैसा हो जाएगा, देखो ये r विल बी इक्वल टू x इज ग्रेटर देन y, मतलब a के एलिमेंट्स वो जो b से बड़े हैं। कौन सा होगा आंसर, आंसर हो जाएगा 3 2 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। So what I am doing, I am giving one condition। अब मैं कंडीशन दे रहा हूं, I am giving one condition। पहले प्रोडक्ट में क्या होता था, कोई कंडीशन नहीं रहती थी, तो सारे एलिमेंट्स लिख देते थे। हाँ, प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, देखो जिसका ये टॉपिक स्ट्रांग है उसका प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। कितनों को आया समझ में, ये साक्षी क्या डाउट है, पूछो। अब देखो आपको लग रहा होगा सर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी है। देखो x, y, अब देखो सेट, रिलेशन ऑफ सेट a टू b, मतलब क्या, a पहले आना चाहिए, ये a की a रहेगा, x a रहेगा, और y क्या रहेगा मेरा, b रहेगा, y क्या रहेगा, b रहेगा, वेयर x इज ग्रेटर देन y। कंडीशन दी है मैंने कंडीशन दी है, मतलब क्या, वो लिखना है मुझे ऑर्डर्ड पेयर्स, मुझे वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिसमें x इज ग्रेटर देन y। अब देखो x क्या है, मेरा a का एलिमेंट है, y क्या है, मेरा b का एलिमेंट है। अब देखो 3 ऑफ 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, ये पहली कंडीशन। अब देखो 1 किसी से बड़ा नहीं है, 2 किसी से बड़ा नहीं है, 3 मेरा बड़ा है 2 से, 4 भी बड़ा है 2 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3, 2, 4, 2। ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सर हमें मतलब पहले पूरा लिखना है, उसके बाद डिसाइड करना है कौन कौन सा है। देखो कंडीशन आपको देंगे क्वेश्चन में, कंडीशन देंगे। सर जैसे प्रोबेबिलिटी में हम पूरा लिखते थे उसका, अब देखो पूरा नहीं लिखना है इसमें, बस रिलेशन लिख, कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। पूरा लिख दोगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा,
रिलेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, आप निकाल रहे हो उससे, आ रहा है ना समझ में? अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, हाउ विल ड्रॉ अ डायग्राम। सर 2 क्यों लिया, 4 भी ले सकते थे ना। क्या 4 2 और 3 2 लेंगे ना, सर x मैं इज ग्रेटर इसीलिए देन बोल y। रहा था सर, मीन्स हम पहले पूरा लिख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कंडीशन के हिसाब हाँ से कौन कंडीशन, कौन। लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो देख के पता चल रहा है ना। देखो 3 2 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है। अब देखो 2 किसी से बड़ा नहीं है, 1 किसी से बड़ा नहीं है, 3 4 से बड़ा हो नहीं सकता, 4 4 से बड़ा हो नहीं सकता, दोनों इक्वल है। आ रहा है साक्षी समझ में? सर मैं पूछ रही हूँ कि अगर इधर कंडीशन है ना x इज ग्रेटर देन y, तो फिर y मतलब b में से 2 ही क्यों लिया, 4 6 7 भी ले सकते थे। तो x इज ग्रेटर देन y है मतलब क्या, a का एलिमेंट b के एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए ना। देखो x a से बिलोंग कर रहा है, y b से, मतलब x का a का एलिमेंट b के एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो कौन से एलिमेंट, 3 2 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, 3 4 से बड़ा नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया। 1 2 इग्नोर हो जाएगा, 1 4 इग्नोर हो जाएगा, क्यों? x इज ग्रेटर देन y, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, 2 is not greater than 2, 3 is greater than 2, 4 is greater than 2, 3 is not greater than 4। आ रहा है समझ में? ये कंडीशंस इग्नोर हो जाएंगी क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नहीं आया अभी भी? है सर। आ गया, वेरी गुड। चलो ओके, अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखो पहले पूरा सेट ए ले लो, 1 2 3 4। बी ले लो, बी क्या हो जाएगा मेरा, 2 4 6 7। आ रहा है समझ में? अब देखो बस जो जो कनेक्ट हो रहा है, 3 मेरा कनेक्ट हो रहा है 2 से, 4 मेरा कनेक्ट हो रहा है 2 से, ये मेरा डायग्राम बन गया। इसमें अब सारों को कनेक्ट नहीं करते। अब देखो, अब इसकी डोमेन लेंगे, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन डोमेन ऑफ आर, ये मेरा रिलेशन आर है, क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, जो मेरे इनपुट, मेरे वैलिड इनपुट है, वैलिड इनपुट क्या है, 3 और 4, 3, 4, इसको डोमेन बोलते हैं। डोमेन क्या है, मेरे वैलिड इनपुट। रेंज क्या है मेरे, रेंज इज आर की रेंज, रिलेशन की रेंज। रेंज क्या हो जाएगी, वैलिड आउटपुट। वैलिड आउटपुट क्या होंगे, 2, 4, वैलिड आउटपुट होंगे 2, 4। अब देखो एक और चीज होती है कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है मेरा, आर का टोटल नंबर ऑफ आउटपुट, जितने भी आउटपुट थे मेरे, टोटल आउटपुट कितने थे मेरे, अच्छा ये 4 नहीं होगा, सॉरी, रेंज मेरा 2 ही रहेगा, सॉरी रेंज मेरा 2 होगा। वैलिड आउटपुट, देखो डोमेन क्या है, वैलिड इनपुट। आपके पास देखो 4 1 2 3 4 थे, सेट ए, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। मैं मैप कर रहा हूं ए को, आई एम फाइंडिंग रिलेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए टू बी, मतलब क्या, ए मेरा क्या है, इनपुट साइड है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, और बी मेरा क्या है, आउटपुट साइड बोलते हैं, बाय राइट साइड। जो जो वैलिड इनपुट है रिलेशन के, अब देखो वैलिड इनपुट क्या है, 3 और 4, तो ये डोमेन हो जाता है। आउटपुट, वैलिड आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, 2, ये मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है टोटल आउटपुट, जितने भी हो सकते थे, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट। टोटल नंबर ऑफ आउटपुट क्या हो जाएंगे मेरे, 2 4 6 7। ओके क्लियर लिखूं? शिवम क्या समझ नहीं आ रहा, ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन? मेरे ख्याल से मैंने बहुत वो कर दिया, एक्सप्लेन करते वक्त थोड़ा वो हो जाता है। एक्चुअली मेरा मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल यूजर्स को थोड़ा टफ पड़ता होगा। अब ठीक है, अब मैंने क्लियर कर दिया।
शिवम अब क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, कोडोमेन। कोडोमेन मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ मेरे आउटपुट। देखो जो रिलेशन में पहला आता है ये इनपुट साइड होता है, इसको बोलते हैं इनपुट, और इसको बोलते हैं आउटपुट। वैलिड इनपुट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या 3,4। रेंज क्या होता है? जो मेरे आउटपुट, वैलिड आउटपुट आए। कितना, कौन सा आउटपुट आया? मेरा आउटपुट 2 ही आया। अब देखो डोमेन के हिसाब से आउटपुट 2 आया, राइट? डोमेन के हिसाब से आउटपुट क्या आया? 2 आया। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन मींस टोटल नंबर ऑफ आउटपुट, मतलब क्या? टोटल एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट बी के टोटल एलिमेंट्स 2, 4, 6, 7। दिस इज नोन एज माय कोडोमेन। विल डू सम मोर क्वेश्चंस, आएगा आपको। अब देखो, सपोज आई टेक सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, set B equal to 3, 5, 6. अब I write a condition. Relation R from A to B. मैं रिलेशन कर रहा हूं कहां से कहां? A to B। मतलब क्या? ये इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है, ठीक है? कंडीशन आई गिव R is equal to X, Y। X क्या होगा मेरा? इनपुट साइड। X belongs to input, Y belongs to output, such that X plus Y is equal to 7. Can you find range? Relation. What will be this relation? वन प्लस 3 नहीं हो रहा, 1 plus 5 नहीं हो रहा, 1 plus 6 हो रहा है, तो क्या लिखूंगा? 1 plus 6 सेटिस्फाई कर रहा है। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, दोनों का सम 7 होना चाहिए। टू और 5 हो रहा है, 2,5 हो जाएगा। और कुछ हो रहा है? और कोई रिलेशन बन रहा है? देखो 4 और 3 बन रहा है, 4,3 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया? रिलेशन हो गया। कितनों को आया समझ में? कितनों को आया? साक्षी आया? हृदय आ रहा है आपको? सर नहीं आ रहा है सर। क्या नहीं आया आपको? क्या नहीं आया? डोमेन। वो तो बता रहा हूँ, इतना आया कि नहीं पहले ये बताओ। सर ये इनपुट आउटपुट नहीं समझा। देखो मैं किसको किससे रिलेट कर रहा हूँ? ए को बी से रिलेट कर रहा हूँ ना, तो ए को बी से रिलेट कर रहा हूँ, तो ए पार्ट को हम इनपुट बोलते हैं, बी पार्ट को आउटपुट बोलते हैं। अगर मैं करता रिलेशन आर फ्रॉम बी टू ए, तो बी इनपुट हो जाता, जो पहले आता है वो इनपुट, जो बाद में आता है वो आउटपुट। सर ये आर आपने x plus y equals to 7 कैसे निकाला? ये मैंने कंडीशन दी है आपको, आई हैव गिवन दिस कंडीशन, दिस इज अ क्वेश्चन। ओके सर। अब हम इसमें डोमेन, रेंज, कोडोमेन निकालते हैं। अब देखो इनपुट क्या, वैलिड इनपुट क्या है? डोमेन, डोमेन ऑफ क्या? रिलेशन आर। मैंने रिलेशन आर नेम दिया, राइट? क्या हो जाएगा? वैलिड इनपुट क्या है? 1, 2, 4।
1,2,4 रेंज क्या हो जाएगा आर का? रेंज हो जाएगा क्या, जो आउटपुट है क्या है 6, 5, 3। कोडोमेन क्या होगा रिलेशन का? जो एक्चुअल टोटल आउटपुट्स थे, टोटल आउटपुट्स क्या थे मेरे? सर रेंज 3 होगा ना सर? देखो 6 भी है, 1 के लिए 6 है, 2 के लिए 5 है, 4 के लिए 3 है। जितने मेरे वाई साइड में आ रहे हैं देखो, तो कोडोमेन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी 3, 5, 6। अब देखो इस केस में आपका रेंज और कोडोमेन एक ही हो गया, लेकिन हर बार नहीं होता, हर बार नहीं होता। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6। अब देखो 1 6 से रिलेटेड है, तो देखो 1 डोमेन है, 6 रेंज है, 2 5, 2 किससे रिलेटेड है? 2 5 से रिलेटेड है, एंड 4 3 से रिलेटेड। तो मेरी डोमेन क्या हो गया? 2 1 2 4, रेंज क्या हो गए? 3 5 6। और कोडोमेन क्या होते हैं? पूरा, ये पूरा कोडोमेन होता है बी, ये पूरा बी कोडोमेन होता है। ठीक है, आया समझ में? चले आगे। अब देखो, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। Relation R from set B to set A. I write what? R is equal to x comma y such that x, अब x किसको belongs करेगा? x belongs to B, comma y belongs to A. Condition is what? अच्छा मैंने आपको दी नहीं है, बोलो एक्सक्यूज मी सर, बोलो। ऊपर वाले एग्जांपल में ए टू बी में आपने रेंज 2 क्यों लिया है सर? 2 होगा ना सर? भाई सब दोनों 2 ही आ रहा है ना, 2 2, रेन मतलब सेकंड साइड। हाँ सर, 2 होना चाहिए ना फिर। भाई सेट में रिपीट नहीं होता एलिमेंट्स, भूल गए? तो ठीक है, बी है मेरा 1 2 3 4, ए है मेरा 4 8 12 16। B is a factor of A. B is a factor of A. B क्या है मेरा? A का फैक्टर है। X क्या है मेरा इस बार? What is X? X is B, right? क्यों? I am relating B to set A, मतलब B मेरा इनपुट है, A मेरा आउटपुट है। तो देखो यहाँ पे पहले मैंने B लिया है, फिर A लिया है, तो क्या आएगा आंसर? R is equal to, क्या 1 4 का फैक्टर है? 1 8 का भी फैक्टर है, 1 12 का भी फैक्टर है, 1 16 का भी फैक्टर है। कितनों को आ रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूं? आदर्श आ रहा है आपको? अनुवर्त, समीर, साक्षी? फैक्टर मतलब क्या? उसको डिवाइड करना चाहिए। देखो 2 4 का फैक्टर है, 2 8 का फैक्टर है, 2 12 का फैक्टर है,
2 16 का फैक्टर है, 3 4 का फैक्टर नहीं है, 3 8 का फैक्टर नहीं है, 3 12 का फैक्टर है, 4 चारों का फैक्टर है, 4 4 4 8 4 12 4 16। कितनों का आया? देखो जिन स्टूडेंट्स के भी एग्जाम नहीं चल रहे हैं उनको मैं कुछ होमवर्क दूंगा, सबके नहीं होंगे एग्जाम साइड, एनसीईआरटी के क्वेश्चन दूंगा, वो कर लेना बस, बेसिक है तो इजी रहेगा। अब देखो इसको ड्रॉ करते हैं फिगर। बी क्या है मेरा 1 2 3 4, ए क्या है मेरा 4 8 12 16। अब देखो 1 मेरा चारों से रिलेटेड है, 2 भी मेरा चारों से रिलेटेड है, 3 मेरा सिर्फ 12 से रिलेटेड है, 4 मेरा चारों से रिलेटेड है। देखो मेरा स्क्रीन छोटा है तो बहुत घिचपिच हो रहा है। सर हाँ हम ये जो आपने ये बनाया है साइड में, राइट हैंड साइड में, हाँ तो हाँ हम हाँ। इसका नहीं बना सकते सर? ए का, फिर उसके बाद 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। सेपरेटली बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ बड़ा करके बना सकते हो, लेकिन एक ही के अंदर रखना। देखो ऐसे बना सकते हो आप, बड़ा करके। मेरा क्या स्क्रीन में जगह नहीं है, लेकिन सबको एक ही के अंदर रखो। ये एक पोर्शन डोमेन है, एक रो है। ये सॉरी ये ए हो गया, सॉरी ये बी हो गया, सॉरी ये बी हो गया, ये ए हो गया। तो ए के अंदर है ना सारे। अब ऐसे नहीं कर सकते कि 1 अलग ले लिया, 2 अलग ले लिया, 3 अलग ले लिया, 4 अलग ले लिया, ये नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो ठीक है, डोमेन क्या होगी इसकी? डोमेन ऑफ आर क्या होगा? कितने इनपुट्स हैं? मेरे ख्याल से सारे इनपुट हो रहे हैं। 1 2 3 4 चारों इनपुट में देखो 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, तो डोमेन 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4। रेंज क्या होगा? शायद सारे हो जाएंगे, रेंज में सब हो रहे हैं, राइट? 4 8 12 16। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा? सारे वैलिड ए के क्या हो जाएगा? 4 8 12 16। कितनों को आया समझ में? अरे बच्चों के एग्जाम से ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। A equal to x y z, b equal to a b c d, then which one of the following is not a relation of a to b? a to b मतलब लेफ्ट साइड में a के एलिमेंट्स आने चाहिए। a to b ये लेफ्ट साइड आना चाहिए, और ये राइट साइड। लेट्स सी। देखो x लेफ्ट साइड में, ac राइट साइड में, तो ये रिलेशन है। y लेफ्ट साइड में है, cd राइट साइड में है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। ये देखो ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे मेरा एक्स वाई जेड के अलावा कुछ नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया। D is not the relation। क्या ये करेक्ट है?
Can you find, is this correct? Can you find domain, range, codomain of R? R क्या है? ये रिलेशन. डोमेन क्या हो जाएगा? इनपुट, वैलिड इनपुट क्या है? 1 2 3. रेंज क्या हो जाएगा? B C A. और कोडोमेन क्या होता है? ये. अब देखो ये किसका रिलेशन किससे? ये किसका रिलेशन किससे? ये A क्रॉस B है, राइट? देखते ही आपको पता चलना चाहिए. देखो कई बार रिलेशन नहीं देंगे. यू हैव टू सी व्हिच टाइप ऑफ रिलेशन इट इज. इट इज रिलेशन नॉट A क्रॉस B. आई कैन से इट इज A to B. A to B. तो B के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? कोडोमेन. A B C. इसका डायग्राम क्या रहेगा? व्हाट विल बी द डायग्राम? 1 2 3 A B C. 1 के साथ B, 2 के साथ C, सॉरी 2 के साथ C, 1 के साथ A, 3 के साथ A. आया समझ में स्टूडेंट्स? इजी है, राइट? ऑर्डर मैटर नहीं करता. ये लिख दो, ये लिख दो, एलिमेंट सारे होने चाहिए. ठीक है ना? ठीक है, मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं. अच्छा एक चीज भूल गया. Can I say relation is a subset of a Cartesian product of two sets? Can I say this is correct? True, right? याद रखना. Can I say this also? Relation is a part of A cross B. आपको मैं क्लास के बाद समझा दूंगा. देखो ये भी ट्रू है. एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. ये भी ट्रू है. तीनों ट्रू है. कितनों को ये तीनों समझ में आ गए? How many understood that these three all three are correct? I think टाइम भी हो गया है, तो मैं इसके साथ विराम दूंगा. कल रिलेशन फंक्शन खत्म कर देंगे. Okay, thank you students.